So last time we were understanding the difference between mutual coherence and spark of the matrix. So we know about spark that it tells us about the smallest number of linearly dependent columns of a matrix. And if we know the spark of a matrix, we can say something about the uniqueness of our sparsest solution. Now, mutual coherence, we also defined it in our last lecture. So mutual coherence tells us about how much columns of a matrix are linearly dependent to each other. So if you focus on this definition, in the numerator, you have inner product between different columns. So if inner product between different columns is 0, means they are orthogonal, then mutual coherence is 0. And if inner product is equal to is close to 1, for example, if you have two columns, so if A is something like this, 1 1 and 1, sorry, minus 1 minus 1, then its mutual coherence will be equal to 1. ठीक है, यहाँ पे absolute value भी है. So it means कि जो columns हैं A के, they are linearly dependent. So we can get that idea from mutual coherence as well. Now the limit on mutual coherence is between 0 and 1. And when we move towards 1, it means our columns become linearly dependent. And when we move towards 0, it means our columns are becoming orthogonal to each other. So spark in this direction increases and spark in this direction decreases. Now moving on, how can we use mutual coherence for answering the fundamental question about unique of our sparsest solution? ठीक है, so that is given by this theorem. So theorem actually relates these two different quantities. So for an M cross N matrix, so A is supposed to be M cross N fat matrix. Remember, we are studying fat matrices. We have the following relationship, that spark of this matrix, ठीक है, is lower bounded by a quantity which directly depends on mutual coherence, 1 plus 1 over mu of A. This is a universal theorem without any condition on A. So it simply says that spark is lower bounded by this quantity which is provided by mutual coherence. Now, we know that Spark told us if you have an X, whose L0 norm is less than 1 by 2 into spark of A. Okay, if you have this X, then this X is unique sparsest solution. हमने last week ये पढ़ा. Now, instead of using spark, if I use mutual coherence, then the guarantee becomes something like this. So coherence-based guarantee says that if your X, L0 norm of your X क्या है? Solution to AX is equal to Y. We are not interested कि how we are going to find it. वो भी आज हम देखेंगे. We are just answering a theoretical question that whether this given X whose L0 norm is known to us, whether this X is unique or not. Okay, that is we are trying to answer. So if X has L0 norm which is less than 1 by 2 into 1 plus mu of A, then this X is unique.
Now, what is the difference between these two bounds? अगर हम स्पार्क की बेस पे जाएं तो स्पार्क ये बताता है कि फॉर ए गिवन एक्स आपकी जो L0 नॉर्म है इट शुड बी लेस देन स्पार्क ऑफ a by 2, और अगर हम कोहेरेंस पे जाएं तो दैट टेल्स अस के अगर x की L0 norm 1 by 2 into 1 plus 1 over mu of a से less है then it is unique, and there is a relationship between spark of a and 1 plus 1 over mu of a. So can anyone tell me what is the difference between these two bounds given the relationship between spark and mutual coherence? No one? जी शोएब. Sir, second one is a tighter bound than the other, and इसमें number of computations भी हमें कम चाहिए होंगी. Tighter means? For instance के spark of okay, so जो हमारे first वाला है मतलब first वाला है for instance x naught is less than 5 हो सकता है, the second वाले में x naught less than 4 होगा, so हो सकता है. ठीक है. So first one is tighter, second one is not tighter. So let me explain it. So we can actually, जो हमारे पास ये स्पार्क और म्यूचुअल कोहेरेंस है, we can actually find some approximation for a full rank matrix. ठीक है. So for a full rank matrix, तो so suppose we have a m cross n. So I think we have already seen it somewhere. Okay, maximum value of spark. So what is the maximum value of spark for any matrix? So rank plus 1. Rank plus 1. ठीक है. So means m plus 1. अगर आपके पास a fat है और a full rank है तो it will be m plus 1. So spark of a has a maximum bound which is around m plus 1. And mutual coherence के लिए we need a lower bound. So for mutual coherence, upper bound we know that is a. So mutual coherence, we can actually show that for matrices who are full rank, mu of a is larger than equal to 1 over square root of m. Okay, these are approximations. They do not hold all of the times, but they hold most of the times, provided your A is full rank. So now if I use first bound, this one, so this, let's label it 1, let's label it 2. If I use first bound, and let's assume a size on A, suppose A is 100 into 1000. ठीक है. So M is equal to 100. So, and let's suppose A is full rank, M is equal to 100. And if I use first bound, it says that if your x0 is less than m plus 1 by 2, ठीक है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको m by 2 कह देता हूँ. अगर m बहुत बड़ा है तो m plus 1 by 2 is approximately equal to m by 2. And second bound says that x should be less than square root of m by 2. अगर आप म्यूचुअल कोहेरेंस की वैल्यू वहां पे पुट करें तो you almost get
square root of m by 2. So अब जब हम सॉल्व करेंगे ax is equal to y को, so a is of size 100 into 1000, x is of size 1000 into 1, and y is of size 100 into 1. ठीक है, तो solution set हमारे पास क्या होगा? Infinite solution set होगा, because a is fat. तो ये सारे x हैं such that ax is equal to y. Now m by 2 is equal to around 50, and square root of m by 2 is around equal to 5. तो इस solution set के अंदर बहुत सारे x होंगे जिनकी L0 norm larger than 50 होगी. बहुत सारे होंगे जिनकी L0 norm हो सकता है equal to 50 हो, 49 हो, so on करते करते till we reach 1. ठीक है, अब जो पहली बाउंड है वो आपको ये बता रही है, since we don't know a method how to find x, वो सिर्फ ये बता रही है कि if you are able to find an x जिसके अंदर less than 50 elements जो है वो non-zero हैं, then this x is unique. So you have much more possibilities. मतलब उसमें 50 भी हो सकते हैं, 49 भी, 48 भी, 47 भी. So you actually आपका जो एल्गोरिदम है वो बहुत जल्दी वहां पे आके रुक जाएगा अगर लेस देन 50, क्योंकि स्पार्क बेस्ड गारंटी है. दूसरे केस में आपके एल्गोरिदम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. इट हैज टू गो टिल इट इज एबल टू फाइंड an x which has only 5 non-zero elements. ठीक है, सो जो सेकंड आपके पास ये वाली जो बाउंड है, इट इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन दिस. जो पहली बाउंड है, इट इज अ वाइडर बाउंड, इट अकोमोडेट्स अ लॉट ऑफ एक्स इनसाइड इट. और हमारे एल्गोरिदम, अभी हम देखेंगे एक एल्गोरिदम आज हम पढ़ेंगे, दे work very efficiently if we are going to guarantee the uniqueness of our sparsest solution based on this bound. ठीक है, so we say that the first bound, which is based on spark, it accommodates a lot of unique solutions. It accommodates a lot of unique solution inside it. It is tighter bound. ठीक है, जो second bound है, it is a loose bound. It only accommodates some of your x in that sense. So that is the difference between spark and mutual coherence. So concluding everything, concluding our discussion that we have been carrying out in last 2 lectures, this is 3rd lecture. So in solving this problem, so we have to solve argument for x such that x has lowest L0 norm and it satisfies these m constraints ax is equal to y. In solving this system of equation, we have answered only one question, and that question is, when any given x is unique. When any given x is unique, and the answer is that you have two possibilities. If you know the spark of A, then you simply need to check this bound x L0
So if this bound is less than half of the spark, so this is less than 1 by 2 into spark of A, then X is unique. Okay? You have other possibility, which is based on mutual coherence of matrix A. So given mutual coherence of A, you have to check whether your given X has non-zero elements which are less than 1 by 2 into 1 plus 1 over mu of A. Then this X is unique. Of course, second thing is contained in first thing, जैसे अभी मैंने आपको समझाया. Now there are also other relaxations. तो थ्योरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्टेड आइसोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, then you have null space property and so on, which actually further reduce the computations, as we have seen that computing the spark of a matrix is much harder as compared to mutual coherence. Even computing the mutual coherence of very large matrices is much harder. So we go on in reducing this constraint of computation, computation of criteria, but at the same time we lose the tightness on the bounds of our solution. So there is a trade-off between these two things. So for a fundamental course like ours, these two criteria, spark and mutual coherence, they are sufficient, and all of the rest are derived from these two criteria. Each way. सर आप टाइटर बाउंड जो है विद रिस्पेक्ट टू एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे हैं ना, isn't it? नहीं, मैं टाइटर बाउंड इस लिहाज से कह रहा हूँ कि if it is known as compared to other bound, it packs many more solutions inside it. सर सो दिस मतलब इम्प्लाइज कि जो हमारे पास जितना हम राइट साइड पे जाते जाएंगे हमारे पास एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, isn't it? जी, क्योंकि हमने स्पार्क कंप्यूट करना है. स्पार्क इज द फाइनल अल्टीमेट थिंग, बट वी कैन नॉट कंप्यूट इट क्योंकि वो एनपी हार्ड प्रॉब्लम है कंप्यूटिंग स्पार्क. ओके. Any other question? Okay, ji. So we have answered only one question related to this problem, that when any given X is unique. Now, what should be the next question? Next natural question could be how to find this X. Okay. So how to find this X? So in finding this X, we have actually two types of algorithms. First type of algorithm, we call them sport-based algorithm or greedy algorithm. We will see one algorithm from each category. And then we have second set of algorithm which are called convex relaxation techniques or algorithm. So solving is not easier. Understanding the uniqueness is a bit easier problem. You have to actually see how can we find this X. So just an overview before we study our first algorithm, that is orthogonal matching pursuit OMP today. So greedy algorithm, एक चीज आप गौर से देखें before I tell the difference. So if your X is sparsest, means its L0 norm is minimum, then actually your X will have many zeros. और कहीं कहीं पे आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नॉन जीरो एंट्री पड़ी होगी. सो दिस इज नॉन जीरो एंट्री. ठीक है, और बहुत ज्यादा जगहों पे जीरोस होंगे.
That is what we mean by sparse solution. Now, all of the indices जहाँ पे नॉन जीरो एंट्री पड़ी है, we call them sport of x. So sport of x is a set of indices. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 के ऊपर एक नॉन जीरो एंट्री पड़ी हुई है. सो वी से कि 4 इंडेक्स के ऊपर एक नॉन जीरो एंट्री है और बाकी सारी जगहों पे जीरो पड़ा होगा. और अगर ये फॉर एग्जांपल इसमें दो चीजें आ जाएं 4 एंड 10, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स 4 और इंडेक्स 10 के ऊपर एक्स एज नॉन जीरो एंट्रीज और बाकी सारी जगहों पे जीरोज हैं. Since we need to recover the values only at the sport of x, so greedy algorithm, what do? They check one by one. ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे उसका प्रिंसिपल. मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो एक एक जो ए का कॉलम है उसको पकड़ेंगे, गिवन वाई को उसके ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये स्पोर्ट के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. Convex relaxation techniques on the other hand, they just don't care about sport. ठीक है, वो x को एज अ कंटिन्यूस वेक्टर लेते हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि इसके कहाँ पे जीरो पड़ा है और कहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू पड़ी है. दे सिंपली टेक x एज कंटिन्यूस वैल्यू और एट द एंड हो सकता है कि आपके पास जो ये वाला x है इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे आ जाए -0.00009 0.01, then you have 0.0001 और फिर 1.001 0.0001 and so on. ठीक है, सो दे ट्राई टू रिकवर एवरीथिंग और फिर उसके बाद आपको एक थ्रेशोल्ड लगाना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज क्लोज टू जीरो, दिस इज क्लोज टू जीरो, क्लोज टू जीरो, दिस इज क्लोज टू 1, दिस इज क्लोज टू जीरो एंड सो ऑन. ठीक है, सो कन्वेक्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स दे वर्क बाय टेकिंग एक्स एज कंटिन्यूम ऑफ वैल्यूज. और जो ग्रिडी एल्गोरिथम्स हैं दे डिफरेंशिएट बिटवीन zero entries and non-zero entries of x, and then they try to recover non-zero entries by assuming that they have the knowledge of sport most of the time. ठीक है, so this is the all story. हम एक एल्गोरिथम यहाँ से देखेंगे, एक एल्गोरिथम हम यहाँ से देखेंगे. There are many algorithms in both categories. Still people are developing a lot of algorithms for this given problem. और जो है वो हजारों के हिसाब से जो है वो पेपर्स आ रहे हैं every year. So these two algorithms that we are going to study today, they form the basis of all those algorithms. ठीक है जी, क्लियर है कि what we are going to do? Any confusion, कोई question यहाँ पे? सर एक दफा कॉन्वेक्स रिलेशन टेक्निक दोबारा बता सकते हैं? जी, कन्वेक्स रिलैक्सेशन टेक्निक हम डिटेल में देखेंगे. It simply does not care about the sport of x. ठीक है, और जो है डायरेक्टली जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है. डज नॉट केयर अबाउट जो आपकी जो है वो क्या कहते हैं स्पोर्ट क्या है. मुझे सिर्फ 1 मिनट दे देंगे. ओके जी, सो एनी क्वेश्चन? So let's see how we can derive an algorithm which is going to solve this problem for us. So the topic is greedy algorithms for solving our
L0 norm minimization problem. Just a moment. So greedy algorithms for solving P0 problem. So first I will motivate the problem, and then I will motivate the algorithm, and then we'll directly go to see how it is applied, and how it can be implemented in a simple MATLAB code. So suppose we have been given AX is equal to Y. So A is M cross N. And further, let's assume that somehow we have computed the spark of A, and we know that spark of A is larger than 2. Such that our optimal solution has an L0 norm or support equal to 1. ठीक है, तो अगर 2 कर देंगे तो एग्जैक्टली 1 होगा, अगर 2 से ज्यादा करेंगे तो 1 से ज्यादा वाले जो सॉल्यूशंस हैं वो भी इस बाउंड में आ जाएंगे। अब हमें ये पता चल गया कि x जो है वो फॉर एग्जांपल x का साइज है is n cross 1, but only single entry is non-zero. बाकी जो है वो हर जगह zeros पड़े हैं सिवाय एक एंट्री के, but we don't know where. ठीक है, exactly कहाँ पे non-zero है that we don't know. So what we can do? So we have columns of A. So this is first column, A1, A2, then we have AI, and then last column AN. So these are columns of A. So in AX is equal to Y, we have X equal to Y. So this is known, A is known, X is unknown. X is unknown. But what we know about X, X has support of 1, means only one entry is non-zero. बाकी जितनी भी entries हैं X की, they are 0. So now what can you say about linear combination of columns of A? कि X जो है वो A के कितने कॉलम से मिलके बना हुआ है? या इसको सॉरी X नहीं, Y जो है, सॉरी Y जो है वो X A के लीनियर कॉम्बिनेशन, A के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। जो गिवन Y है वो A के कितने कॉलम से मिलके बना हुआ है? If we know that the support of X is 1. जी मोहसिन सर एक ही कॉलम से होगा, एक ही कॉलम से, क्योंकि we can write Y as so Y is equal to X is X1 A1 plus X2 A2 plus Xi and so on, plus somewhere Xi AI.
so on and x n a n. ठीक है. Now if we know that x की सिर्फ एक ही नॉन जीरो एंट्री है, then y is simply equal to x at some I ai. तो y इस टाइप का होगा. ठीक है ना. तो अगर x की सपोर्ट 2 है तो 2 कॉलम्स ए के जो है वो ए को बना रहे होंगे. 3 है तो 3 कॉलम्स ऑफ ए जो है वो बना रहे होंगे. The problem is we don't know which columns, so we have to search. Even in this single case, हमने कितने टेस्ट्स जो है वो करने हैं. हम पहले जो है वो पहला कॉलम पकड़ेंगे. ठीक है. पहले कॉलम को टेस्ट करेंगे, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, करते करते अनलेस वी फाइंड जो हमारा गिवन कॉलम है. अगर जो है वो आखिरी कॉलम है तो हमें सारे के सारे एन टेस्ट करने पड़ेंगे पहले, बिकॉज वी डोंट नो विच कॉलम. नाउ सी द कॉम्प्लेक्सिटी. अगर 2 कॉलम्स हों, अगर y जो है अगर x की सपोर्ट 2 हो, ठीक है, एंड देन वी आर श्योर दैट y इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ a, बट वी डोंट नो विच 2 कॉलम्स. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्बिनेशंस जो है वो सर्च करने पड़ेंगे. इन दिस सिंपल केस we can actually see के फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गिवन y है और कोई एक ai मेरे पास कॉलम है, तो अगर मैं एक टेस्ट बना लूं कि मैं y को प्रोजेक्ट करके देखता हूं ai के ऊपर, बिकॉज Sir, we can't hear you. hello. Okay, so I hope I am audible now. There was issue with my internet. So now let me share the screen. ठीक है जी. So
I was saying if we know that y is linear combination of only single column of A, even then we have to do n tests. And how should those tests be done? We have to find some quantity which is going to help us, and that quantity is inner product between y and ith column of A. Because when this inner product is very high, we are sure that y is linear combination of this column of A. Okay, so that is the philosophy behind these algorithms. So how can we use it actually? So let's see our first algorithm, that is orthogonal matching pursuit, OMP. आइडिया समझ आ गया आपको कि हम जो है वो कौन सी जो क्वांटिटी है इनर प्रोडक्ट को डिप्लॉय करेंगे और कैसे जो है व्हाई इट इज अ सर्च स्ट्रेटजी. ठीक है. So what do we do in orthogonal matching pursuit? So first we have, let's go on next page. So in OMP, first we have some input. So our input is, of course, matrix A and our vector Y. Then our goal is to find X such that norm of X, कौन सी norm? L0 norm is minimum. ठीक है, that is our goal. Okay, इसके साथ constraint भी है, AX is equal to Y भी है. So how do we proceed? So this is an iterative algorithm. कि आपके पास कुछ number of iterations होंगी और आप जो है उसको solve करेंगे algorithm को. हर इटरेशन के ऊपर आपके पास एक सोल्यूशन आएगा, फिर अगले पॉइंट के ऊपर आप उस सोल्यूशन को मजीद रिफाइन करेंगे. सो आई विल एक्सप्लेन द एल्गोरिथम विद वन एग्जांपल. इससे जो है बेहतरीन चीज कोई नहीं है किसी भी एल्गोरिथम को समझने की. इंस्टेड ऑफ इट्स सूडो कोड, लेट्स अप्लाई दिस एल्गोरिथम डायरेक्टली ऑन एन एग्जांपल. सपोज आई हैव एन A which is 10 cross 20. Fat matrix, many solutions. Among these solutions, we have to find one which has minimum L0 norm. Let's suppose it is full rank. Rank of A is 10. It is not requirement for OMP to work, but just to simplify things. And let's also suppose somehow we know spark of A, which is equal to 6. ठीक है, अब अगर स्पार्क ऑफ A 6 है तो जो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा वो कहाँ तक जाएगा, उसकी सपोर्ट क्या होनी चाहिए. अब आपने वो वाली बाउंड यूज करनी है जो हमने पहले बाउंड्स यूज की हैं. आपने अपने एल्गोरिथम को बताना है. सो वी हैव टू टेल आवर एल्गोरिथम कि आप जो है वो हर टाइम के ऊपर, अभी हम देखेंगे कैसे, x को अपडेट करो अनलेस यू हैव एन x which satisfies this criteria is less than spark of A divided by 2. Spark of A divided by 2, so it should be less than 3. So what is less than 3? Equal to 2. So this must be equal to 2. ठीक है, तो हमने जो है एक ऐसा x रिकवर करना है जिसकी L0 नॉर्म 2 होनी चाहिए. मींस के उसमें दो नॉन जीरो एंट्रीज हैं और y is linear combination of two columns of A. All of these things are equivalent to say. ठीक है, if we are able to find an x which has L0 norm equal to 2, then we will stop. That is just our algorithmic guarantee that you have to stop here. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. That is a unique solution. So
सबसे पहले आप एल्गोरिदम को इनिशियलाइज करेंगे। इसको गौर से देख लें, इसकी डिबगिंग का सवाल इस तरह जैसे मैं बता रहा हूँ आपको हर एग्जाम में आता है और हर क्विज में ऑलमोस्ट आता है। सो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एल्गोरिदमिक फ्लो कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज करेंगे अपने एल्गोरिदम को। सो वी हैव सम थिंग्स। नंबर वन, वी हैव अ रेजिडुअल। We have a residual vector. So residual at every iteration. So at 0 iteration, we have r power 0. Something like this. Or even let's simplify it. Simply write r0. 0 here means 0th iteration. You are just going to start the algorithm. At every iteration, you will also need a solution x0. Okay? And then at every iteration, you will also need a support set. So this S is a support set. मैंने भी आपको explain किया है. What do we mean by support set? So this will also be different at every iteration. At 0th iteration, this will be an empty set. This is phi, empty set. ये तीन चीजें हैं जो हमें इनिशियली चाहिए। तो रेजिडुअल you will always set it equal to y, जो आपका गिवन y है। फिर हम देखेंगे कि हम इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं हर इटरेशन पे। इनिशियलाइजेशन के वक्त जो आपका सोल्यूशन है, यू विल विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी यू विल टेक इट इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी हम देखेंगे हम इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और जो आपका सोल्यूशन, जो आपका सपोर्ट सेट है, दैट इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग इनसाइड इट। तो ये तीन चीजें हमने इनिशियलाइज करा ली और अब इन्हीं तीन चीजों को हमने हर इटरेशन के ऊपर जो है वो क्या करना है, अपडेट करना है। So iteration number 1, k is equal to 1. So for k is equal to 1, what we do, we compute. So we compute absolute values of all inner products or dot products of our residual with columns of A. With columns of A means के मैं जो है वो inner product लूंगा और 0 with A1, ठीक है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखूंगा। फिर मैं इनर प्रोडक्ट लूंगा और 0 विद A2, फिर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखूंगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे केस में आपने कितने इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करने हैं, एक के 20 कॉलम्स हैं, तो आपने 20 इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करने हैं पहले स्टेप पे। तो आफ्टर यू हैव कंप्यूटेड दीज 20 इनर प्रोडक्ट्स, आपने इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट? लार्जेस्ट सर। हम लार्जेस्ट, ऑफ कोर्स लार्जेस्ट, बिकॉज हम जो है वो ए के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं जिनसे वाई मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हम जो है वो इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे। सो हम वो जे सिलेक्ट कर लेंगे एट इटरेशन 0, which gives us maximum of this quantity AJ transpose R0 for all j equal to 1 2 till n, which in our case is 20. इनर प्रोडक्ट लें रेजिडुअल का
और उसमें से जो की सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लें, लेकिन उसका इंडेक्स, कॉलम का इंडेक्स आपने सिलेक्ट करना है। सो J0 इज इंडेक्स एट इटरेशन 0। ठीक है, तो सपोज कि J0 टर्न्स आउट टू बी 7। What does it mean? It means कि जो 7th कॉलम है A का, it has largest inner product absolute value with your residual। ठीक है, तो इसको उठा के हम अपना जो सपोर्ट वेक्टर है उसको अपडेट कर देंगे। तो जो हमारा सपोर्ट वेक्टर एट इटरेशन 1 हो जाएगा, उसमें हम ये वाला इंडेक्स डाल देंगे 7। ठीक हो गया, एक चीज हमने अपडेट कर ली, अब दो चीजें रह गई। अब हमने जो सोल्यूशन है वो अपडेट करना है और फिर रेजिडुअल अपडेट करना है, और फिर हम इस लूप में आ जाएंगे। तो S1 इज 7, तो अब हम सोल्यूशन अपडेट करेंगे। अब मुझे चाहिए बेसिकली x एट इटरेशन 1, ये मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो एक गिवन ए था, जो मेरे पास एक गिवन ए था जिसका साइज था 10 into 20, उस ए में से मैं एक स्मॉलर ए एक्सट्रैक्ट करूंगा। लेट्स कॉल इट AS एट 1। ठीक है, इसमें सिर्फ वो वाले कॉलम्स होंगे जिनका इंडेक्स आपके सपोर्ट सेट में पड़ा है। तो we take AS1 to be only equal to A7। ठीक है, क्योंकि S1 में सिर्फ 7 पड़ा हुआ था, तो 7th जो कॉलम था उसको उठा के हमने नए ए में डाल दिया, तो ये मेरा नया ए बन गया। नाउ I will solve this system of linear equation AS1 x S1 equal to y। In other words, I am trying to solve के जो A के कॉलम्स हैं जिनका लार्जेस्ट इनर प्रोडक्ट आ रहा है मेरे रेजिडुअल के साथ, सिर्फ उन कॉलम्स का मैं एक मैट्रिक्स बना के, और अपनी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम AX इज इक्वल टू वाई थी उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया AS1 XS1 इज इक्वल टू वाई। हियर हमारी एग्जांपल में y इज स्टिल 10 क्रॉस 1। साइज आपने जहन में रखने हैं, नहीं तो आप गुम हो जाएंगे। XS1 विल बी 1 क्रॉस 1, एक स्केलर होगा आपके पास, और AS1 विल बी 10 क्रॉस 1। ए की कॉलम A7 पड़ा हुआ है इसके अंदर। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट, कोई जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस खराब नहीं हो रहा। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? हाउ कैन आई सॉल्व दिस? सो द OMP says simply solve is using normal least square। जो आपने नॉर्मल लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है उससे आप इसको सॉल्व करें। अगर मैं नॉर्मल लीस्ट स्क्वायर से इसको सॉल्व करूं तो व्हाट विल बी XS1 इक्वल टू? हाँ जी, लेट मी आस्क। हाँ जी आफाक, आप बताओ, अगर मैं नॉर्मल लीस्ट स्क्वायर से इसको सॉल्व करूं तो ये जो नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें से XS1 मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगा? सर इसमें जो हम ए डैगर फाइंड करते हैं, क्योंकि ये ए आपकी बिल्कुल वो है, टॉल मैट्रिक्स है, तो उससे बिल्कुल, दैट इज द सॉल्यूशन। AS1 का सूडो इनवर्स इनटू y। गुड, दैट इज योर सॉल्यूशन। और AS1 का सूडो इनवर्स वो आप कंप्यूट कर सकते हैं। अभी आपको एक वैल्यू देगा, दिस विल गिव यू 1 क्रॉस 1, एक वैल्यू देगा इस एग्जांपल के केस में जो हम अभी कर रहे हैं पहले स्टेप के ऊपर। आफ्टर यू हैव दिस वैल्यू यू कैन मॉडिफाई योर सॉल्यूशन। सो आपका जो सॉल्यूशन है वो ये है x1 इक्वल टू, इसका टोटल साइज है 20 क्रॉस 1।
टोटल साइज क्या है 20 क्रॉस 1। अब उस पॉइंट के ऊपर जहां पे इसकी एक नॉन जीरो एंट्री थी वहां पे वैल्यू हमने रिकवर कर ली। वो कौन सा पॉइंट है मोहसिन? सर 7th। 7th पॉइंट, वेरी गुड, स्टे अटेंटिव। तो बाकी हर जगह पे मैं 0 डाल दूंगा और जो 7th इंडेक्स होगा सॉरी वहां पे मैं ये वाली वैल्यू डाल दूंगा। सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मैं 10 डाल दूंगा, बाकी हर जगह पे मैं 0 डाल दूंगा। दैट इज माई सोल्यूशन एट फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब तीसरी चीज रह गई जिसको मैंने अपडेट करना है, दैट इज रेजिडुअल। ठीक है, तो रेजिडुअल को अपडेट हम क्या करेंगे, अब उसका जो नाम है वो क्लियर हो जाएगा, व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ रेजिडुअल। सो व्हाट वी विल डू, we will update our residual, we'll compute a new residual r at 1, r at 0 y था, r at 1 में से कैसे मैं अपडेट करूं ताकि अगली दफा मैं इस रेजिडुअल को यूज करूं इंस्टेड ऑफ y? कोई आइडिया? मास, सर मेरी आवाज हाउ आ रही शुड है? आई अपडेट इट? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, क्या बोला है आपने, आप बोलो। मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर इसके लिए वो कर लेंगे ना, जो रेजिडुअल स्टेप 0 था माइनस ए एक्स, कौन सा? ये जो आर 0 माइनस ए एक्स, ये जो एक्स अभी फाइंड किया x1। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, गुड। तो r0 मेरे पास y था, ठीक है, तो मैं y में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा a मल्टीप्लाइड बाई x1, कि जो भी करंटली मेरा सोल्यूशन है उसकी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम y मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इन दिस वे आई गेट अ न्यू रेजिडुअल। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस रेजिडुअल को आई विल बी यूजिंग इट फॉर नेक्स्ट इटरेशन, जो कि अभी हम अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पे कोई सवाल है, एक दफा फिर देख लें इसका फ्लो। 3 चीजों से आपने स्टार्ट करना है। ऊपर वाली थ्योरी बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि अब आप लिंक कर पा रहे हैं कि व्हाई डिड वी स्टडी स्पार्क, और हमें जो है वो थ्योरेटिकल आंसर क्यों चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें ये जो 2 है इसका पता होना चाहिए कि हमारे एल्गोरिदम में रुकना कहाँ पे है, राइट? तो आफ्टर दैट आपका एल्गोरिदम जो है वो हर स्टेप के ऊपर 3 चीजें अज्यूम करता है, उससे मिल रही हैं, रेजिडुअल, सॉल्यूशन, इनिशियल और सपोर्ट सेट। और फिर आप एट एवरी इटरेशन वो इन्हीं 3 चीजों को अपडेट करता जाता है अनलेस कि वो जो सपोर्ट ऑफ एक्स है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। वो होमवर्क ये है कि घर जाएं, ठीक है, और या आप लोग जब इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, प्रूव दैट दिस रेजिडुअल R1 at this stage defined like this when taken inner product with column A7 gives you 0। बहुत सिंपल इसका प्रूफ है, यू मस्ट बी एबल टू प्रूव इट। हमने जिस तरीके से स्पेसेस देख ली हैं मैट्रिसेस की, यू मस्ट बी एबल टू डू इट दिस प्रूफ, कि आप इस रेजिडुअल की इस डेफिनेशन को A7 जो गिवन है उसके साथ देखें और प्रूव इट कि दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दैट इज व्हाई वी कॉल इट ऑर्थोगोनल, कि आपका हर स्टेप के ऊपर या हर इटरेशन के ऊपर जो रेजिडुअल है जो बच जाता है, इट इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू द करंट कॉलम्स ऑफ योर मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस कैन बी प्रूवन वेरी इजीली। एक्चुअली आई हैव जस्ट प्रूवन इट ओनली इन 4 लाइंस, यू शुड बी एबल टू प्रूव इट। तो इसका जो इम्पैक्ट है दैट इज प्रोफाउंड। इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट टाइम स्टेप पे अच्छा लेट मी आस्क, हाँ जी नाजिश जरा बताएं इसका असर क्या होगा अगले टाइम स्टेप के ऊपर जब मैं k इज इक्वल टू 2 करूंगा, तो हाउ कैन आई यूज इट दिस फैक्ट? आपको दोबारा A7 के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि इट इज ऑलरेडी 0। एग्जैक्टली, you do not need to do your inner product with A7 once again।
ठीक है, यहाँ पे हमने 20 इनर प्रोडक्ट कंप्यूट किए थे, उसमें से हमने लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू वाला चूज किया था, राइट। बट ऑन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो नया रेजिडुअल आएगा, वी आर 100% श्योर दैट दिस रेजिडुअल इज ऑर्थोगोनल टू A7. वी डू नॉट नीड टू कंप्यूट दैट इनर प्रोडक्ट, वो जीरो देगा आपको हमेशा। तो हम जो बाकी 19 कॉलम्स हैं सिर्फ उनके साथ इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो इटरेशन 2 पे क्या होगा, इटरेशन 2 पे ये होगा so when k is equal to 2, you have your residual R1, अभी आपने कंप्यूट किया कैसे, y minus ax1. Then you also have your support set s at 1 available, so that is equal to 7. Then you also have x at 1, so x at 1 is equal to, you know that 0 0 0, और जो 7th entry है वहां पे 10 पड़ा, and all other are 0. ये चीजें अब आपके पास हैं यहाँ पे। अब इस इटरेशन के ऊपर we have to again compute them, and we have to truncate our algorithm because we know that the support of x is 2. तो हम ये स्टेप कंप्यूट करके बस बाहर निकल जाएंगे, जो भी आ जाएगा, लेकिन वो कंप्यूट कैसे करना है, लेट्स सी। उसी तरीके से you will take inner products of your residual, so you will take inner product of residual at iteration sorry, अब यहाँ पे हाँ जी R1 हो जाएगा and AJ, AJ और फिर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। So you have to search over all J. So we write it mathematically like this, for all J, but J not in कौन से वाले, जो आपके S1 में है, उनके ऊपर सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा, because we know that this residual is orthogonal to those columns. तो अब आपके पास 19 इनर प्रोडक्ट्स होंगे, आपने फिर उसी तरीके से क्या करना है, इनमें से जो मैक्सिमम है वो फाइंड करना है। तो सपोज के जो J1 है एट इटरेशन 1, it turns out to be 13, ठीक है, it turns out to be 13. Now you have to update your support set. So support set at iteration 2 will be 7 and 13. 7 जो पिछली इटरेशन का था and 13 जो भी हमने फाइंड किया है, ठीक है। So that is our support set. Now if we know support set, what we can do, we can solve for x at 2. So x at 2 जो है, again it will be of 20 cross 1, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि दो जगहों के ऊपर नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो how are we going to solve it? So we are going to solve it कि हम जो है, जो given A था 10 cross 20 का, उसमें से सिर्फ वो वाले कॉलम निकाल लेंगे जो हमारी करंट सपोर्ट में जिनका इंडेक्स पड़ा हुआ है। सो आई विल फॉर्म अ न्यू मैट्रिक्स AS2, जिसके अंदर सिर्फ कौन कौन से कॉलम्स होंगे, A7 एंड A13। AS1 जो था उसका साइज था 10 क्रॉस 1, AS2 का साइज है 10 क्रॉस 2, दो कॉलम्स आ गए। अगर तीसरी इटरेशन हम करेंगे तो फिर इसका साइज एक और बढ़ जाएगा, चौथी इटरेशन करेंगे तो एक और साइज बढ़ेगा, ग्रेजुअली इसका साइज इंक्रीज होगा 1 at 1 step. So इसमें दो कॉलम्स आ गए। Now I will use this new system of equation AS2 into XS2, ठीक है, XS2 equal to Y. So Y is still 10 cross 1, AS2 is 10 cross 2, and XS2 will be 2 cross 1.
फिर उसी तरीके से जैसे अभी आफाक ने हमें बताया कि हम XS2 कैसे फाइंड करेंगे, सो दिस विल बी AS2 dagger into Y. AS2 का सूडो इनवर्स इनटू Y. यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। ये जो दो वैल्यूज आएंगी ये आप अपने सॉल्यूशन को अपडेट करने के लिए यूज करेंगे x at 2. So x at 2 will be all zeros. ठीक है, सपोज इसकी वैल्यूज ऐसे आ जाती हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज 10 है और इधर -5 है, या 10 नहीं 100 कर लेते हैं, ये पिछले से डिफरेंट होगा। तो जो आपका 7th इंडेक्स है वहां पे 100 पड़ा होगा, फिर जीरोस, फिर जो 13th इंडेक्स है वहां पे -5 पड़ा होगा, फिर जीरोस। दैट इज योर न्यू सॉल्यूशन। अब x1 में सिर्फ एक वैल्यू थी, वहां पे जो नॉन जीरो वैल्यू थी दैट वाज डिफरेंट एट इंडेक्स 7, जो यहाँ पे आपको मिलेगी, बिकॉज यू आर टोटली सॉल्विंग अ न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। सो उसी तरीके से फिर हम अपना जो रेजिडुअल है उसको अपडेट करेंगे। सो अवर रेजिडुअल R2 that will become equal to y minus ax2, y minus ax2। तो अगर तो ये आपका जैसे सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया था, तो यहाँ पे रेजिडुअल 0 हो जाएगा, कंफर्म बात है 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ सॉल्यूशन ax is equal to y। रेजिडुअल आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं होता, कब नहीं होता, वो उस वक्त होगा व्हेन जो इनिशियली हमने अज्यूम किया था कि x की सपोर्ट 2 है, वो एजम्पशन हमारा खराब है। वी डिडंट नो अबाउट स्पार्क, हमें कुछ नहीं पता था, हमने अपने एक एजम्पशन के ऊपर अज्यूम किया कि x की सपोर्ट 2 है। इफ दैट assumption इज फॉल्स, तो यहाँ पे रेजिडुअल 0 नहीं होगा। तो फिर आपको हो सकता है कि एक इटरेशन और करनी पड़े या दो इटरेशंस और करनी पड़े until stopping criteria। तो इन जनरल अगर आपको सपोर्ट का नहीं पता x की, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्पार्क, व्हाट शुड बी अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया? कैन एनीवन टेल मी? रबिया? हमारा रेजिडुअल 0 हो जाएगा। वो तो फिर बहुत ज्यादा इटरेशंस लगेंगी ना। लेट्स सपोज अगर x में मिलियंस ऑफ कॉलम्स हैं, तो हम मिलियंस इटरेशंस तो नहीं कर सकते। तो वी शुड हैव अ कन्विंसिंग स्टॉपिंग क्राइटेरिया। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो इसकी रेजिडुअल है इसकी नॉर्म देखेंगे, ठीक है, इसकी हम L2 नॉर्म देखेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई थ्रेशोल्ड डिफाइंड है ये उससे लेस है, तो फिर हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन आएगा, जो कि हमने इन ऑर्डर टू सेव अवर कंप्यूटेशंस, जो कि हमने यहाँ पे हासिल किया है, टू सेव कंप्यूटेशन दैट विल नॉट बी एग्जैक्ट सोल्यूशन, दैट विल बी सोल्यूशन विद दिस मच ऑफ प्रिसीजन। कि आपने जो है आप पहले जो है वो क्विट करके आ गए हैं अपने सोल्यूशन में से। लेकिन अगर आपको सपोर्ट पता है, आपको स्पार्क पता था, देन यू कैन एग्जैक्टली मेक इट इक्वल टू 0, जो कि आप लोग मैटलैब असाइनमेंट में करेंगे जब हम इसके ऊपर मैटलैब असाइनमेंट करेंगे एक। ठीक है, तो इस केस में अगर R2 नॉन जीरो है तो यू कैन अगेन प्रूव दैट R2, सॉरी 2 हम दूसरे तरीके से लिख रहे थे, R2 is orthogonal to A7 and A13 both. That is why we name it orthogonal matching pursuit. So matching means you are matching your residual using inner product with different columns of A. Orthogonal means your residual is orthogonal to previous columns जिनके ऊपर आपने सर्च कर ली थी. And pursuit means it is iterative. You are just doing it iteratively. So this is the algorithm. अब इसमें कोई स्टेप अगर क्लियर नहीं है, I can repeat that. But you have to tell me कि क्या चीज रिपीट करनी है. Questions?
हाँ जी नाजिश। सर जो हमने नेक्स्ट आइटरेशन में y यूज किया उसकी जगह R1 भी तो यूज किया जा सकता था। ये इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, इसमें x2 को 1 क्रॉस 1 ही अज्यूम करके। नहीं, x2 तो 1 क्रॉस 1 है नहीं, x2 तो 2 क्रॉस 1 है ना। अच्छा सॉरी लेकिन सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी, आप क्या कह रही हैं? x2 को मैं 1 क्रॉस 1 अज्यूम करके y की जगह रेजिडुअल 1 यूज करना। मतलब कि आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ जो नई -5 आई है उसका जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम रेजिडुअल वो सब्ट्रैक्ट करूं? हाँ, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो गई है ना 100 वाली। नहीं सर, जब आप x2 फाइंड कर रहे हैं उस टाइम पर भी y यूज करने की जगह as2 into x of s2 equals r1 यहाँ पे जी। अच्छा, आप कह रही हैं कि यहाँ पे मैं रेजिडुअल यूज कर लूं? दैट इज अ वेरिएंट ऑफ OMP, पीपल डू दैट, दैट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ठीक है कि आप यहाँ पे जो है वो y की जगह आप वो यूज करें जो आपने पीछे रेजिडुअल रखा हुआ है, और इसको आप फिर 1 क्रॉस 1 अज्यूम करना पड़ेगा, उससे आपको शायद कहीं पे सेविंग मिल जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के व्हेन दिस एल्गोरिथम विल वर्क, तो इसके ऊपर आप कोई थ्योरेटिकल बाउंड निकाल सकते हैं द वे वी हैव डिस्क्राइब्ड इट। इट टर्न्स आउट, सो इट दिस इज अ वेरी रीसेंट प्रूफ जो कि लोगों ने अब जाके प्रूव किया है। आई थिंक इट इज जस्ट 5-6 years ओल्ड कि if your x satisfies your original coherence based criteria 1/2 1 plus 1 over mu of a, then OMP, this version of OMP is going to find it with epsilon equal to 0, epsilon not equal to 0. It is going to find it, and people have actually computed the number of iterations that are needed on average to find this x for any given a. Okay, so if you change anything in this algorithm, what you are going to do, you are going to affect its convergence properties. Then you have to also see कि वो algorithm converge किस conditions में होता है और कितनी जो है वो iterations में converge होता है। So notes इसके uploaded हैं, तो please उसमें से आप इसका जो pseudo code है which is generic, यहाँ पे तो मैंने example से explain किया है, please go through it और उसको जो है वो समझने की कोशिश करें। कोई और सवाल? जी मोहसिन। सर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि ये जो आपने कंडीशन बताई है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 होने की, ये मॉडिफाइड OMP की है या जो OMP आपने पढ़ाया? जो OMP मैंने पढ़ाया है उसकी। OMP के हजारों वर्जन्स हैं। दिस इज फंडामेंटल। और कोई सवाल जी? ओके, सो दैट इज इट फ्रॉम फॉर टुडे। तो नेक्स्ट में हम जो दूसरे टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स हैं कि आप जो है वो कन्वेक्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, हम उनको पढ़ेंगे परसों वाले लेक्चर में। और जो है हम एक क्विज भी लेंगे, परसों क्विज भी होगा आप लोगों का फ्रॉम जो आपका होमवर्क ऑलरेडी अपलोडेड है। छोटा सा क्विज होगा होपफुली, लेकिन वो क्विज जरूरी है। ठीक है जी। So if you have any question, I am here for next 5 minutes, otherwise you can leave.